होगी एकता का पता। सिमटा है पूरा संसार जिसमें वो भारत देश है मेरा। सुप्रभात। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत में विविधता में एकता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सिंधु घाटी की वैदिक सभ्यता की महक आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। मौर्य काल की स्थापत्य कला वर्तमान में भारतीय मुद्रा को सुशोभित कर रही है। शक, कुषाण व हूण जैसी विदेशी जातियां जिनका उद्देश्य था भारत पर राज करना, उनका भारतीय समाज में सम्मिलन आज भी गुंजायमान है। यहाँ तक कि विदेशी यात्री जैसे फाहियान व हेनसांग भी भारत की तारीफ करने से नहीं चूके और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगत सिंह जैसे शूरवीरों का गान करे बिना भारत की यशोगाथा तो जैसे अधूरी है। आज के कार्यक्रम की थीम यशोगाथा आज के वार्षिक उत्सव की प्राणधार है, ताकि हर भारतीय अपने देश के वीर शहीदों को याद करे और अपने देश के पराक्रमी इतिहास पर गर्व कर सके। Dear audience, have you introduced your children to the marvelous records of our Bharat? No? Well then, let us acquaint you with the historical and the extravaganza of our Bharat through our portrayal of Yashogatha. So let's stay tuned and let this historical extravaganza called Yashogatha begin. Light over darkness. Ladies and gentlemen, we stand on the brink of a remarkable journey, one that we will embark upon together, filled with learning, experience, joy and enlightenment. It is traditional and symbolic to start such a journey with the lighting of lamp. जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य को शुरू होने से पहले विद्या और कला की देवी मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित होता है। अतः मैं हमारे माननीय प्रेसिडेंट सर, उपाध्यक्ष सर, प्रिंसिपल सर व आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। Jana
like a billion stars, who always remove obstacles from my ways, we respectfully pray to you to grace your hello upon us. Lord Ganesha, the Sukhakarta, the Dukharta, the God of mind, intellect and ego, we pray to you with our sincerity. In this order, I would like to welcome the students of Adinath Public School to give this grand event an auspicious onset with their divine performance of Ganesh Vandana.
Ashok Kumar Jain, Agonis, our Vice President Shri Neeraj Jain, our Secretary Shri Narendra Jain, our Joint Secretary Shri Magan Chandji Jain, our Treasurer Shri Kuldeep Jain Barjadia sir, and our special guest, our ex-president Shri Vijay Jain sir, and all the members of the management that are present here today to witness the annual function Yashogata, a story that never ends. We are very proud and happy that our children, our staff members have really worked very hard to bring about this annual day celebration. But before we start today's program, I would like to brief you about this program. The program is divided into three parts. The first part of the annual function is where we witness through the Hindi skit from KG to PG, Mera Vidyalaya, Mera Abhiman, My School, My Pride. The children have presented a small skit, and in this skit we are trying to show you the entire legacy of Shri Jain Adinath Jain Shikshan Sansthan, the establishment of the Sansthan till the present day where we stand. A beautiful presentation. I hope when you see this play, all of you will really enjoy it. The second part is the Yashogata, a story of the brave warriors of our country. All the warriors who have fought bravely to bring about India to the present day till the SLV and Agni. All the children have presented a beautiful presentation. And the third phase of the program is the career counseling and very good interactive session with our parents and children of class 10 and 12 in the auditorium in our school. We have invited Mr. Deepak Saxena, a well-known counselor from Jaipur, who will be traveling, and a very renowned person from our own Jain community in Alwar, Mr. Naman Jain, who has just been appointed as the Assistant Commissioner of Police in Delhi. Very soon he will be taking his position in Delhi, as for a short visit he is today in Alwar. He is very much the son of one of our management members, Mr. Suresh Jain. I hope all of you are well aware about him. He will be coming here today to address our children and motivating them with his speech. My dear parents, we are very proud of our children. You will see today many of them have never ever come on stage, spoken a dialogue or presented a dance. This is the first appearance of theirs on the stage. तो मैं चाहूँगा कि आप सब
हमारे साथ मिलके इनकी हौसला अफजाई करें और इन नन्हे बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत की है आज के हमारे यशोगाथा थीम एनुअल फंक्शन पर, आप सब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब इसको एंजॉय करेंगे और हम सब इन बच्चों को ताली बजा के और इनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका मैं अब हमारे कंपेयरर्स को और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद। श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान का सफर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्नी कबड़ की 1901 में स्थापना करके हुआ। इसकी सफलता के बाद और विद्यार्थियों की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए 1968 में जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करी गई। इसके बाद वर्ष 1986 में वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान में यह श्री आदिनाथ जैन पीजी महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। So, to enlighten us with the glorious suffer of Shri Adinath Jain Shikshan Sansthan, we would like to call students for a beautiful skit. Please welcome them with a big round of applause. को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ऐसे ही अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए प्रकाश की एक किरण बनकर आए श्री बाबू रामजी जैन, जिन्होंने सर्वप्रथम बलजी राठौर की गली में पाठशाला की स्थापना कर आदिनाथ शिक्षण संस्थान की नींव डाली और यहीं से प्रारंभ हुआ आदिनाथ शिक्षण संस्थान का सुनहरा सफर। केजी से पीजी तक मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। तो आइए देखते हैं आदिनाथ शिक्षण संस्थान की कहानी हम बच्चों की जुबान। आज ही हमारे अलवर शहर में साधु जी का आगमन हुआ है। मुझे उनके दर्शन हेतु जाना चाहिए और उनके प्रवचन का लाभ लेना चाहिए। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। अरे रुको रुको बाबूजी, गर्मा गर्म चाय तो पीते जाओ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक छोटा बच्चा चाय बेच रहा है। यह तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है। क्या करे बाबूजी, हमारी मजबूरी है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो स्कूल की फीस भर सके। अरे यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे बाबूजी किस सोच विचार में डूब गए। चाय नहीं लेनी तो मैं आगे चलता हूँ। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय। हमारे शहर के बच्चे गरीबी और महंगी फीस के कारण मजदूरी करने को मजबूर हैं। यही तो राष्ट्र का भविष्य है। ऐसे में देश के भविष्य का आखिर क्या होगा? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो गुब्बारे। अरे बाबूजी रुको रुको, अपने बच्चों के लिए गुब्बारे तो ले लो। सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका, मेरी बोनी तो करा दो। अरे ये फिर से मैं क्या देख रहा हूँ, एक छोटी बच्ची गुब्बारे बेच रही है। यह तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि गुब्बारे बेचने की। इस बारे में कुछ सोच विचार करना होगा। अरे बाबूजी क्या सोचने लगे हो, आपको गुब्बारे नहीं लेने तो मत लो, मैं आगे चलती हूँ। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। अरे माता जी की प्रवचन का समय हो गया, पहले माता जी की प्रवचन का लाभ ले लिया जाए।
तुम्हारी अंतरात्मा कहे। वह काम जो समाज में परिवर्तन का आधार बने। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। चलो घर की ओर चला जाए। आज मन में विचारों के बादल उमड़ रहे हैं। आज मार्ग में मिले दो बाल मजदूरों ने मुझे विचारों के सागर में गोते लगाने को मजबूर कर दिया। हमारे समाज की अनेक समस्याओं का कारण सिर्फ एक ही है और वह है अशिक्षा। भले ही हमारे शहर में अनेक सरकारी विद्यालय और अनेक निजी विद्यालय हैं, परंतु मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं भी इस समस्या का समाधान करने में अपना योगदान दूं। वे अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मिले। हमें अलवर शहर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मेरी तरफ से पूरा सहयोग दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी तन मन धन से अपना पूरा सहयोग दूंगी। पूरा सहयोग देंगे। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। संस्थान के द्वारा सर्वप्रथम वलजी राठौड़ की गली में जैन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। यह विद्यालय अशिक्षा के अंधेरे में शिक्षा रूपी प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुआ। इसके प्रथम प्रधानाध्यापक श्री गणपत लाल जी जैन थे।
प्रधानाध्यापक श्री भुवनेश जी माथुर थे, जिससे हमारे नन्हे बच्चों ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। चलो बच्चों, अपनी किताबें निकालो। आज हम रंगों के विषय में जानेंगे। मैम, आज मुझे बाहर गार्डन में जाकर पढ़ना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीखने का कार्य केवल कक्षा में ही नहीं होता है। हम बाहर खुली हवा में पेड़ पौधों और फूलों के साथ बहुत सी गतिविधि सीख सकते हैं। चलो आज हम फूलों और पेड़ों से रंगों के विषय में जानेंगे। ये लाल फूल है, देखो ये कितना अच्छा है। और ये पीला फूल है। आगे चलकर जैन प्राथमिक विद्यालय जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में प्रोन्नत हुआ। यहाँ हमारे विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर कॉलेज शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए। आइए देखते हैं हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ बोलिए, कैसे आना हुआ? सर, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? सर, वो मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं बीएड करूं और इसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अच्छा, यह तो एक समस्या का विषय है। ऐसे तो हमारे विद्यालय का कोई ना कोई शिक्षक ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर जाता रहेगा। आप कुछ समय इंतजार कीजिए। हमने अपने ही विद्यालय में इस समस्या के समाधान हेतु कुछ प्रयास किए हैं। देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है। जी सर। साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ छोटू लाल। साहब, आपके लिए एक डाक आया है। अरे वाह, हमें बीएड कॉलेज की मान्यता मिल गई है। अब हमारे भावी शिक्षकों को ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए अपने परिवार से दूर दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा और वह अपने ही शहर में रहकर उच्च कोटि शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सन 1968 में श्री बाबूराम जी जैन के प्रयासों से श्री जैन टीटी कॉलेज की स्थापना हुई। यह महाविद्यालय संपूर्ण राजस्थान में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर नेट द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है। अरे कनुप्रिया, तुम इतने दिनों बाद कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे तुम इतनी परेशान से क्यों लग रही हो? अरे मेरा भाई बीकॉम करना चाहता है। उसकी मैं उसके एडमिशन के लिए परेशान हूँ। अरे इतनी सी बात, क्या तुम नहीं जानती? हमारे ही शहर में, हमारे ही संस्थान में श्री आदिनाथ जैन कॉमर्स महाविद्यालय की स्थापना हुई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भाई अपने ही शहर में सुरक्षित माहौल में उच्च शिक्षण प्राप्त कर सकेगा। आदिनाथ शिक्षण संस्थान ने कॉमर्स कॉलेज की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक और कदम बढ़ाया और आगे चलकर यह कॉलेज पीजी महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। अरे माही, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? बस
पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी। अरे माही, तुमने तो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, तुम्हारी नौकरी तो अवश्य ही लग गई होगी। अरे कहाँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे यह कैसे संभव है? तुम तो कक्षा में मेधावी छात्रा रही हो। वर्तमान समय में मेधावी होना ही पर्याप्त नहीं है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। हाँ, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं और हम जैसे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। आवश्यकता को ही आविष्कार की जननी कहा जाता है। वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता को देखते हुए सन 2005 में आदिनाथ पब्लिक स्कूल की स्थापना की। अरे तुम सुबह से अखबारों में क्या ढूंढ रही हो? आपको तो कोई चिंता है ही नहीं। मैं सुबह से अखबारों में ऐसा विज्ञापन ढूंढ रही हूँ जिसमें किसी ऐसे स्कूल का विज्ञापन हो जो अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो और जिसमें फीस भरना हम मध्यम वर्गीय लोगों के दायरे में। हाँ, तुम सही कहती हो। अरे अपनी पड़ोसन है ना निशी शर्मा, वो कह रही थी कि आदिनाथ स्कूल के बड़े चर्चे चल रहे हैं। हाँ, मैंने भी ऑफिस में सुना है कि आदिनाथ पब्लिक स्कूल के बड़े चर्चे हैं। वो शहर के बीचों बीच जो स्थित है और उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। हम भी अपने बच्चे का एडमिशन आदिनाथ पब्लिक स्कूल में ही करवाएंगे। हमारे आदिनाथ वाले अभी चुनाव है ना, हाँ। शपथ पत्र। इस प्रकार यह संस्था एक नया आकार लेगी जहाँ शहरवासियों की उम्मीदें, अपेक्षाएं फलीभूत होने लगी। संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता से परिपूर्ण शिक्षा का संगम लिए आदिनाथ शिक्षण संस्थान अपनी परिपाटी पर खरा उतरने लगा। हम जड़ों से जुड़ी इस आस्था को पुष्पित पल्लवित करने लगे। हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक कुमार जी जैन ने अपनी नवनिर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी के साथ इस संस्था को बढ़ते कदमों में कुछ भावी योजनाओं भी जोड़ने का प्रयास किया है। आइए हम उन योजनाओं से आपको परिचित करवाते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने निर्देशन में छात्र के भविष्य को देखते हुए आदिनाथ स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना अभी हाल ही में की गई है। साथ ही संगीत अकेडमी की स्थापना भी शीघ्र की जाएगी। श्री आदिनाथ शिक्षण संस्थान के द्वारा शहर में एक और विद्यालय खोलने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। यह संस्थान केजी से पीजी तक की शिक्षा तो एक ही प्रांगण में देने में सक्षम है, किंतु अब भविष्य की योजनाओं में श्री आदिनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना का लक्ष्य प्राथमिकता पर है। हम परम पिता ईश्वर से कामना करते हैं कि शीघ्र ही हमारी योजनाओं को सफलता मिले। धन्यवाद।
वादा कर दिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। Such an inspiring performance from our students. Dear audience, these Rajasthani traditional people have first time climbed on the stage, so they deserve a huge round of applause. You yourself can observe their coordination, their dancing steps. मानो राजस्थान की तो धूम ही मचा दी, तो क्यों ना राजस्थानी रंग को चारों ओर फैलाएं और राजस्थानी परंपरा को एक बार फिर साकार कर अपने राज्य के गौरव को बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति जो यही दर्शा रही है। So, now to show us an astounding performance, I would like to invite the boys of classes 1st and 2nd. Give a huge round of applause to these tiny tots. आओ जी, बिराजो जी, मारे आंगन में पधारो जी, मनवा ग्राम रहता
संस्कार है, रचना पे जो जान लुटाएंगे जाजी अवतार है, रखवाला भी फटकार है, रणबा का सिद्धार है, अकबर ने धूल चटाई को महाराणा प्रताप है, चेतनी प्रताप है, हाथी को स्वाभिमान है, बैरी को दानों एक नहायो कन्या छावन प्राण है, सबका का बेटी बाण चढ़े गौरी पे बरसियों काल है, शेर को बड़ो फाड़ दियो वो पृथ्वीराज चौहान है, गंगा दास कबीर है, तो नाच वाले शीश है, प्राण कटे लड़ जावे का संग्रामी झुंझार है, का संग्रामी झुंझार है, का संग्रामी झुंझार है, तीन भूमि है आदर की थाने इतिहास बतावा, स्वाभिमान को जानो गाने किस्सों आज सुनावा, तीन भूमि है आदर की थाने इतिहास बतावा, स्वाभिमान को जानो गाने किस्सों आज सुनावा, सूरज में आजाद अबेगा जाओ गढ़मान चलेगा दीवाना जो हीरा को अभिमान है, बड़ा मेरा किसान 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 है। हम बावड़े छोरे मुख्य अतिथि महोदय, प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों का आदिनाथ पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए वो कम है। इसे शानदार बनाने में हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है। हम बोलने में कम, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जिस तरह हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अपनी मेहनत को आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसी तरह बोर्ड की परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें, श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान का नाम बुलंदियों तक ले जाएं। जैसे कि थोड़े समय पहले खेलों में हमारे संस्थान के बच्चों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है जो कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हम अब भी यही चाहते हैं, हमारे शिक्षक सभी बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्रयास करें और बढ़िया अंकों से परीक्षाओं को पास करें, हमारे संस्थान का नाम रोशन करें। इसके लिए हम बच्चों को चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल कूद का कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा का हो, बढ़ चढ़कर जो भी हमारी समिति, हमारी संस्था उनको कर सकेगी, पूरा सहयोग देंगे और दे रहे हैं। ये हम प्रतिबद्ध हैं। जय जिनेन्द्र। It's time for another terrific performance. पूजा हूँ, अर्चना हूँ, मैं हूँ इस जग की भवानी, नारी हूँ, उजियारी हूँ, मैं हूँ पावन नित बहती गंगा, उषा हूँ, जननी हूँ, मैं हूँ वट की शीतल छाया, काली हूँ, दुर्गा हूँ, गीता हूँ, मीरा हूँ, मैं हर महाकाव्य की गाथा हूँ, ना अबला हूँ, ना बेचारी हूँ, मैं रणभूमि की महाकाली हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ। Today, we will dive into the rhythm of womanhood and Lord their absolute wisdom, resilience, strength and courage. Here I stand as a woman myself, and I deem it nothing less of a privilege as I salute women from all walks of life for their unparalleled contribution. Today, we bow in gratitude and respect to all the women and Nari Shakti who broke the shackles of stereotypes. So now I call upon stage the young scholars of class 3rd
to celebrate the phenomenal universe of womanhood and revere every woman around us. So give an enthusiastic round of applause for our tiny little rock stars. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब-कबाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब-कबाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। न झुकती है, न रुकती है, न थमती है, न थकती है। न झुकती है, न रुकती है, न थमती है, न थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है। जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है।
जो आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नींद है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। जो जितने तो नदी का रुख भी मोड़ेगी, जो ले लिया है एक बार कर्म करके छोड़ेगी, ना तो उसने इम्तिहान लेने कोई न दर्द की उसे फिक्र, न चोट का ही कोई डर। सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Thank you.